بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لبنان کی فوج نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کا ٹرک ضبط کر لیا۔ بیکا وادی کے قریب عیسائیوں اور نصر اللہ کے حامیوں میں جھڑپیں، 2 ہلاک۔ نائجر کی فوجی حکومت نے بنائی کیبنٹ، ویسٹ افریقہ ملکوں کی کانفرنس، فوجی کارروائی پر غور کیا گیا۔ سوڈان جنگ سے عام لوگوں کو بھیانک تکلیفیں ہو رہی ہیں، UN عہدیداروں کی رپورٹ، کہا کوئی جیت نہیں رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا نابلس میں دھاوا، فلسطینی نوجوان جاں بحق، یہودی آبادکاروں کے حملے۔ عراق میں کردوں کے خلاف آپریشن کے دوران ترکی کے 5 سپاہی ہلاک۔ امریکی جزیرے ہوائی میں جنگل کی آگ، 36 ہلاک، تفریحی مقام تباہ ہو گیا۔ لوک سبھا میں نو کانفیڈنس موشن کو شکست، مودی نے کہا اپوزیشن اقتدار کی بھوکی ہے، تحریک ہمارے لیے لکی ثابت ہوگی۔ ہندوؤں میں کٹر پن پھیلایا جا رہا ہے، لوک سبھا میں اسد الدین اویسی کی تقریر، منی پور، ہریانہ ٹرین فائرنگ کا مسئلہ اٹھایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے بیروت کے قریب حزب اللہ کے ایک ٹرک سے ہتھیار اور گولہ بارود ضبط کر لیا ہے، جس کے بعد علاقے کے عیسائیوں اور طاقتور شیعہ گروپ کے ارکان کے درمیان خطرناک جھڑپیں ہوئیں۔ یہ جھڑپیں لبنان کے دارالحکومت کے قریب کہالے ٹاؤن میں ایک واقعے کے بعد چہارشنبے کی شام شروع ہوئی۔ جس جگہ جھڑپیں ہوئی وہ مقام سیریا سرحد کے قریب بیکا وادی میں ہے۔ مقامی میئر عبود ابی خلیل نے کہا کہ مقامی لوگوں نے ٹرک کو گھیر لیا، یہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ٹرک کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد حزب اللہ کے ارکان نے جو ٹرک کی حفاظت کر رہے تھے فائرنگ کر دی، جس سے ایک مقامی شخص ہلاک ہوا۔ ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ اس کا ایک رکن بھی زخمی ہوا، جس کی بعد میں موت ہو گئی۔ لبنان کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ جملہ 2 لوگ مارے گئے ہیں اور ٹرک سے گولہ بارود ضبط کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کا ایک اہم گروپ اور تنظیم ہے جس نے 1975 سے 1990 تک کی سول وار میں اہم رول ادا کیا۔ کئی مغربی ملک اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، لیکن لبنان میں وہ کافی مضبوط ہے اور حکومت میں بھی شامل رہی ہے۔ اس دوران جمعرات کو جھڑپوں میں ہلاک حزب اللہ رکن احمد علی قصاص کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ حزب اللہ کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر تصویریں جاری کرتے ہوئے احمد علی قصاص کو دکھایا، جو سیریا میں فوجی وردی پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیریا جنگ کے دوران حزب اللہ نے ایران کے ساتھ مل کر صدر بشار الاسد کو بچانے میں اہم رول ادا کیا۔ 2021 میں ساؤتھ لبنان کے ایک دروز گاؤں میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں پر مقامی لوگوں نے ایک ٹرک کو روکا تھا جس میں حزب اللہ راکٹ لانچر لے کر جا رہی تھی۔ ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ حزب اللہ تنظیم سویلینز کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وہ راکٹ لانچر اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے نابلس پر دھاوا کرتے ہوئے ایک 27 سالہ فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے مقتول کی پہچان عامر خلیفہ کی حیثیت سے کی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ان کے سر میں گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی فوج نے نابلس کے قریب زوتا گاؤں پر حلہ بول دیا، جس کے بعد جھڑپیں ہوئیں۔ مقتول کے بھائی نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے الائن ریفیوجی کیمپ کے باہر خلیفہ کو گولی ماری، جہاں پر وہ رہتا تھا۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ الاقصی شہیدی بریگیڈ نے کہا کہ خلیفہ کا تعلق الاقصی سے تھا۔ اسرائیل کو 2 سال سے ان کی تلاش تھی۔ اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے فلسطینی جائیدادوں کو گرانے کی کارروائی جاری رکھی۔ تل ابیب میں چاقو سے حملے کے ایک واقعے میں ایک اسرائیلی زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا کہ جارڈن سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور نے ایک 30 سالہ اسرائیلی کے سینے میں چاقو گھونپ دیا، جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی پولیس نے جارڈن کے اس شخص کو گرفتار کر لیا جو اسرائیل کا ورک پرمٹ رکھتا تھا۔ اسے پوچھ تاچھ کے لیے ایک جیل میں رکھا گیا۔
सूडान में जंग की वजह से आम लोगों को भयानक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यूएन अहदेदारों ने सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात बताई। एक मीटिंग में कहा गया कि सूडान के अवाम को फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पों की वजह से नाकाबिले बयान तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी फरीक सूडान में जंग जीत नहीं रहा है और कोई भी बहुत ज़्यादा पेशकदमी भी नहीं कर रहा है। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम, दारफूर और दूसरे मकामात पर सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी हैं। यूएन अहदेदारों ने शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया और कहा कि इंसानी हुकूक और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जिनसी हमलों के वाक़यात पेश आए हैं, बच्चों को निशाना बनाया गया है, उन्हें ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया गया है। यूएन अहदेदारों ने दारफूर और खर्तूम में इंसानी हुकूक के कारकुनों की हलाकतों और अगवा की धमकियों का भी हवाला दिया। अमेरिका के हवाई के एक जजीरे में जंगल की आग से कम 36 लोग हलाक हुए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हवाई का एक तफरीही मकाम लहान या तहस नहस हो गया है। माउंट काउंटी की हुकूमत ने एक बयान में बताया कि आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 270 से ज़्यादा इमारतें तबाह हुई हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। हवाई वेस्ट अमेरिका की एक जजीरा रियासत है जो पैसिफिक ओशन में मेनलैंड अमेरिका से 3200 किलोमीटर दूर है। अफ्रीका के मुल्क नाइजर में फ़ौजी हुकूमत ने 21 वज़ीरों की एक कैबिनेट बनाई है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस में नाइजर के फ़ौजी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर गौर किया गया। नाइजर में जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हुई है और सदर मोहम्मद बाजूम को कैद कर लिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मोहम्मद बाजूम और उनके घर वालों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी का इजहार किया है। ऐसी खबरें हैं कि उन्हें सदारती महल में हिरासत में रखा गया है और वहाँ पर बिजली और पानी नहीं है और कई दिन से ताज़ा खाना भी नहीं दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल ने फौरी सदर की रिहाई पर जोर दिया। नाइजीरिया के दारुल-हुकूमत अबूजा में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों ने सूरत हाल पर गौर किया और अपने अगले कदम के बारे में गौर किया और बातचीत की। इस ग्रुप ने नाइजर की फौजी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। इराक में कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तुर्की के 5 सिपाही हलाक हो गए। तुर्क फौज ने अप्रैल 2022 में नॉर्थ इराक में केपीपी के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन क्लॉक है। तुर्की का कहना है कि पीकेके को तुर्की पर हमले करने के लिए इराक के अड्डे इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ये फौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। लौटते हैं इंडिया, शुरुआत करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में शिकस्त हो गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे लिए लकी साबित हुई है और एनडीए 2024 में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। उन्होंने उनकी हुकूमत पर भरोसा जताने वालों का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर्स की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खलअंदाजी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कई बिल्स पर संजीदा बहस की ज़रूरत थी लेकिन अपोजिशन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अपोजिशन ने उन लोगों के साथ धोखा किया है जिन्होंने उन्हें वोट दिया। अपोजिशन ने बार बार साबित किया है कि उनके लिए मुल्क से ज़्यादा इख्तिदार अहम है। मोदी ने कहा कि भगवान उन पर हमेशा मेहरबान रहा है। ये भगवान की मेहरबानी है कि अपोजिशन ने यह तहरीक पेश की है। मैंने 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन टेस्ट के दौरान कहा था कि यह हमारा फ्लोर टेस्ट नहीं है बल्कि अपोजिशन का फ्लोर टेस्ट है और इसके नतीजे में उन्हें इलेक्शंस में शिकस्त हुई। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान तल्ख लफ्ज़ों का तबादला हुआ। एक दिन पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मणिपुर का मसला उठाते हुए कहा था कि मणिपुर में बीजेपी ने भारत माता का कत्ल किया है। मोदी ने कहा कि अपोजिशन इख्तिदार की भूखी है और गरीबों की परवाह उसे नहीं है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने साबिक बॉस राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी आइडियोलॉजी इंडिया को बांटती है। इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन नीरव मोदी से किया जो मुल्क से फरार है। उन्होंने मणिपुर वायलेंस के लिए भी मोदी पर तनकीद की और उनका कंपैरिजन महाभारत के अंधे किरदार धृतराष्ट्र से किया। राज्यसभा में मणिपुर मसले पर गड़बड़ हुई। ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट की मानसून सेशन का ज़्यादातर हिस्सा मणिपुर के बारे में हंगामों की नज़र हो गया है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस में हिस्सा लेते हुए हरियाणा के नोह में तशद्दुद, ट्रेन में मुसाफिरों के कत्ल और मणिपुर जैसे मसाइल उठाए। हैदराबाद के एमपी ने मेजॉरिटी कम्युनिटी में कट्टरपन पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने हाल ही में
ट्रेन में एक रेलवे कांस्टेबल की तरफ से अपने एक सीनियर और 3 मुसलमान मुसाफिरों को कत्ल करने वाले कांस्टेबल के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उसने मुसाफिरों से खिताब करते हुए कहा था कि अगर तुम्हें इंडिया में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये अक्सरियती तबके में कट्टरपन और इंतहा पसंदी फैलाने की मिसाल नहीं है। क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायीद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दी पोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, FIR हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर, 4था पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या यह आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर DMK के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने खातिलों को रिहा कर दिया। यह आपका कॉन्शियस है? यह आपका कॉन्शियस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए, बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए इस हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। UCC सर, इस UCC का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब,
एक कल्चर, एक जबान, ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है, यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया, पढ़ो प्रदेश, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर, मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए के कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को बदलेंगे, तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर। हरियाणा के नौह हलके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस एमएलए आफ्ताब अहमद ने उन पंचायतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है जिन्होंने अपने देहातों में मुस्लिम कारोबारियों पर पाबंदी लगाई है। महेंद्रगढ़, रेवरी और झज्जर जिलों की बाज़ पंचायतों ने हुकूमत और अहदेदारों को ख़त लिखते हुए मुस्लिम कारोबारियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उनके एक जैसे ख़त सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। हाल ही में हरियाणा के नौह, गुरुग्राम और बाज़ दूसरे मकामात पर फ़िरक़ेवाराना झड़पें हुई थीं जिनमें कम से कम 6 लोग हलाक हुए। इनमें 2 होमगार्ड और 1 इमाम शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लेबनान की फौज ने हिजबुल्लाह के हथियारों का ट्रक जब्त कर लिया। बिका वादी के करीब ईसाइयों और नसरुल्लाह के हामियों में झड़पें, 2 हलाक। नाइजर की फौजी हुकूमत ने बनाई कैबिनेट। वेस्ट अफ्रीका मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, फौजी कार्रवाई पर गौर किया गया। सूडान जंग से आम लोगों को भयानक तकलीफें हो रही हैं। यूएन ओहदेदारों की रिपोर्ट, कहा कोई जीत नहीं रहा है। इस्राएली फौज का नाब्लस में धावा, फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक, यहूदी आबादकारों के हमले। इराक में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तुर्की के 5 सिपाही हलाक। अमरीकी जजीरे हवाई में जंगल की आग, 36 हलाक, तफरीही मकाम तबाह हो गया। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को शिकस्त, मोदी ने कहा अपोजिशन इख्तिदार की भूखी है, तहरीक हमारे लिए लकी साबित होगी।
हिंदुओं में कट्टरपन फैलाया जा रहा है। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर। मणिपुर, हरियाणा ट्रेन फायरिंग का मसला उठाया। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।